Hello everyone, welcome to my page Computer Guru Academy. Me myself Sagar Bora and I am a professor of IT. In this session, we are going to learn about advanced web designing SOP 1. Okay, so just like your previous videos, in this session also we are going to have a step-by-step guide. How will you write your codes? At what point, what thing you will be writing for what reason? Okay, so let us start with the question. What is the question exactly? Okay, they are asking to create a website using HTML5 where you're going to create a website using HTML and CSS using any four CSS properties. Four CSS properties means you have to use four different kind of styles. Okay, that can be any style. Okay, write a code for two separate pages having different file names such as first page as index.html and second page as page2.html as form.html. That means what? So first page you have to give the name as index.html that you have to keep in mind, and the second page name should be page2.html. Okay, use this theme such as college profile or company profile, etc. Every page must contain a proper meta information and design web page as follows. So meta information means you have learned the topic of digital marketing where we give on-page SEO and off-page SEO, right? So meta tags are used for your on-page SEO. That means what? You can describe your website details under your meta tag, which is not going to be show onto your display, that is onto your output, but it can be work as a backend process to work for your website. Okay, so let us start with the first thing, that is creating an HTML file according to the details they have given us to write. Okay, to write your HTML, we'll first go to notepad file, search bar, we go to notepad. Okay, so first step will be to write your, that means what, we are going to write an HTML file under your document type, that is HTML. Okay, this command will state that, and after that we are going to give a tag of HTML. Say that we are going to write the program under HTML programming languages. Okay, then we are going to write head tag where we are going to mention the title for the head tag. Head tag open will give title, that is for the classes profile. We'll close the title tag. We'll again close head tag, but before closing head tag we are going to use meta tag because they have also asked us to give proper meta information. Okay, so for that we'll give meta, that is your tag, followed by attribute. Attribute is your name. Meta name should be, I will say, keywords. Okay, description will be, description is again an attribute. I'll say I'm creating a classes profile, so I'll say, so I'm going to create a classes profile, so I'll be giving the keywords accordingly. I'll be saying career oriented. Okay, I'm just giving one single keyword. You can give more keywords if you want to. Okay. Next will be, I don't need more meta information regarding this website, so I'm going to close my head tag here. Okay, but before closing my head tag, it is also asking me to create four CSS properties. Now here they have not asked us to give internal CSS or external CSS. So for that reason, we are going to create only internal CSS, that is HTML file, and your CSS will be coming under one single document, that is one single page. Okay, so यहाँ पे हमने स्टाइल टैग को ओपन किया. And HTML is a non-case sensitive programming language, so you write in capital, you write in small letters, it doesn't matters at all. ठीक है, आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, स्टाइल टैग को ओपन किया, इसने हमें क्या बोला यहाँ पे, यू हैव टू गिव डिफरेंट फोर CSS प्रॉपर्टीज. सो फॉर दैट रीजन, अच्छा यहाँ पे CSS प्रॉपर्टीज देने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते कि उसने क्या बोला यहाँ पे. ठीक है, तो इट इज सेइंग अस द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग which is highest among other text on pages. That means what, H1 tag, right, must be at the center of the page. तो यहाँ पे एक CSS प्रॉपर्टी हो गई कि हमने उसको अलाइन करना है सेंटर में, right. There must be a paragraph which introduces general information
about the chosen at least three physical style text. Three physical style text means bold, italic, underline, subscripts, superscript. These are the different physical style text which you can use here. And you should also have an image with an alternate text. This page must connect it to another page via proper navigational links. That means what we have to click on next, so it goes to the next page. Okay. So this particular thing is an information of first page of your first page, how you will be doing things. Okay. सो यही चीज़ को हम पहले परफॉर्म करते हैं, ओके, जहाँ पे हमें स्टाइल कैसे देनी है हमें पता चले, राइट। तो हम आते हैं हमारे नोटपैड पे वापस से। यहाँ पे हमने एक सिलेक्टर दे दिया H1, जिसको हमने बोला कर्ली ब्रैकेट ओपन, व्हेनेवर यू आर यूजिंग स्टाइल यू विल यूज कर्ली ब्रैकेट्स, व्हेनेवर यू यूजिंग टैग्स यू विल बी यूजिंग ट्रायंगल ब्रैकेट्स। जब भी आप स्टाइल को प्रॉपर्टी देते हो तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देंगे, जब भी आप HTML को कुछ प्रॉपर्टी देते हो तो हम ट्रायंगल ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने दिया H1 के अंदर बॉर्डर स्टाइल कोलन, और यहाँ पे हमने लिख दिया डॉटेड। दिस इज वन ऑफ द CSS प्रॉपर्टीज यू कैन गिव, ओके। कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, मैंने इसको एक CSS प्रॉपर्टी दे दी है। अब नेक्स्ट, अब मेरा सिलेक्टर होगा P मतलब पैराग्राफ टैग। अगेन वी ओपन द कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हमने बोला कलर कोलन रेड। वी आर गोइंग टू गिव बेसिक प्रॉपर्टीज सो दैट इट इज नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू इन द एग्जाम्स। आपको एग्जाम के लिए इजी पड़े इसलिए हम इसको एकदम बेसिक से बेसिक प्रॉपर्टीज देंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे लिया है बॉडी कर्ली ब्रैकेट ओपन, जहाँ पे हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर। माइंड इट व्हेनेवर यू यूजिंग HTML, तो HTML के अंदर आप जब बॉडी बॉडी को बैकग्राउंड कलर देते हो तो आप एट्रीब्यूट यूज करते हो BG कलर। बट वही चीज़ अगर आप CSS के अंदर लेते हो ना, मतलब स्टाइल के अंदर लेते हो ना, तो वहाँ पे आपका एट्रीब्यूट का नाम हो जाता है बैकग्राउंड कलर। यू हैव टू गिव द होल नेम। बैकग्राउंड और कलर के बीच में आएगा हाइफन, दैट इज डैश, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। एंड देन यू गिव अ कोलन नॉट इक्वल्स टू साइन, ठीक है। जब भी आप HTML को कोई प्रॉपर्टी देते हो तो हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं, बट जब हम CSS को प्रॉपर्टीज देते हैं तब हम कोलन साइन यूज करते हैं, ओके। सो ये चीज़ आपका एकदम क्लियर होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर गिविंग योर एग्जाम्स, क्योंकि ये कुछ सिली मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं रिगार्डिंग द ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, ओके। तो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया रैंडमली कोई भी कलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कलर रेड दिया है, तो अब हम बैकग्राउंड कलर देते हैं येलो, ओके। यू कैन गिव एनी कलर यू वांट, हमने यहाँ पे रैंडमली येलो कलर लिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लेते हैं बी टैग एज एन एलिमेंट, बी मतलब बोल्ड, ओके। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया हमने, अब यहाँ पे हम इसको दे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन, मतलब कि जो भी चीज़ हम बोल्ड में लिखेंगे वो अंडरलाइन होके आएगा, ठीक है। एंड अगेन यू हैव वन मोर टैग दैट इज यू। वैसे हमारे 4 CSS प्रॉपर्टीज हो चुकी है, बट एक और एक्स्ट्रा लिख देना ताकि जो भी एग्जामिनर होगा ना, जो भी आपका एक्सटर्नल होगा, जो भी आपका इंटरनल होगा, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा वहाँ पे, इसके लिए, ओके। सो वी गिव वन मोर प्रॉपर्टी अंडर यू, दैट इज टेक्स्ट अलाइन राइट। आई विल गिव इट टेक्स्ट अलाइन, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। देना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपने दे दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट विल क्लोज अवर स्टाइल टैग, and then we'll close our head tag, okay। Now we come to the body part, जहाँ पे हमने किया H1, उसने यहाँ पे बोला था ना the index page must contain a heading which is highest among the other text pages and must be at center of the page, right। तो यहाँ पे हमने यूज किया H1 टैग को, इसको मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया। एट्रीब्यूट कौन सा दिया? अलाइन। अब यहाँ पे हम CSS को यूज नहीं कर रहे, राइट, बट ये H1 टैग जो है वो एक प्रॉपर्टी यूज करेगा फ्रॉम द स्टाइल, दैट इज बॉर्डर स्टाइल विल बी डॉटेड, मतलब वो डॉट डॉट वाला बॉर्डर देगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने H1 किया अलाइन, डबल कोट्स ओपन किया हमने यहाँ पे, और इसको हमने लिख दिया सेंटर में। Yes। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे क्लासेस का नाम, तो मेरे क्लासेस का यहाँ पे नाम है कंप्यूटर गुरु, ओके। यू कैन टेक एनी थीम यू वांट, यू कैन टेक योर कॉलेज नेम, यू कैन टेक योर क्लासेस नेम, यू कैन टेक योर ऑफ कंपनीज नेम, एनीथिंग यू कैन टेक। मैंने यहाँ पे मेरे क्लासेस का नाम दिया हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। क्लोजिंग अवर H1 टैग, बिकॉज क्या आगे हमें कुछ लिखना नहीं है।
अब उसने यहाँ पे बोला कि यू हैव टू राइट 2 लाइन्स अबाउट योर क्लासेस या 2 लाइन्स अबाउट वट एवर यू आर डूइंग, राइट। हमने पी टैग ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 लाइन्स लिखते हैं अबाउट माई क्लासेस, दैट इज तो जैसे हमने कुछ यहाँ पे 3-4 लाइन लिखी है यहाँ पे अबाउट अवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये होने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, पी टैग को क्लोज कर दिया बिकॉज वी आर डन विद राइटिंग द पैराग्राफ। और अब यहाँ पे हमने कुछ बोल्ड टैग में लिख दिया, दैट इज बी टैग के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पे एफ, जस्ट बिकॉज इज इन एस वाई जे सी आई टी कॉमर्स का मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ एस ओ पी का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस वाई जे सी कॉमर्स आई टी एस ओ पी 1। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग इन द अंडर बोल्ड टैग। बोल्ड टैग इसलिए दिया क्योंकि हमने यहाँ पे बोल्ड पे कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे यू टैग भी ले लेते हैं। अब यू टैग के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एस ओ पी जो है कौन से सब्जेक्ट का है, तो इट इज़ ऑफ एडवांस वेब डिजाइनिंग, ठीक है। सो दैट ये यू पे यहाँ पे हमने जो भी प्रॉपर्टी दी है ना वो वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। वी क्लोज अवर यू टैग, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इमेज भी डालना है, राइट। तो हम यहाँ पे भी डालेंगे इमेज। तो इमेज डालने के लिए हमने यहाँ पे दिया टैग कॉल्ड एज आई एम जी। आई एम जी विल बी यूज टू इंसर्ट एन इमेज इनटू योर वेब पेज, ठीक है। उसके बाद हमने आगे दिया एस आर सी, एस आर सी मतलब सोर्स। अब वो इमेज हमें कहाँ से देना है ना हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओके। सो आपको इमेज डालना है यहाँ पे, तो इमेज डालने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ओपन करोगे आपका फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके फिर आप जो भी फोल्डर में आपका इमेज रहेगा वो फोल्डर पे जाओगे एंड फिर वहां से आप वो इमेज को लोगे, ठीक है। अब इमेज लेने से पहले यू विल आस्क योर इंटरनल और एक्सटर्नल कि मैम या सर हम यहाँ पे इमेज कैसे डाले करके या फिर कौन से लोकेशन चल रहे, सो दैट वो कंसिडर ना किया जाए कि आप कोई भी फोल्डर में जाके कोई भी चीज़ को ओपन कर रहे हो करके, इसीलिए, ठीक है। सो वी गो टू डाउनलोड्स फोल्डर बिकॉज मेरा इमेज यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर पे है, ओके। वी टेक एन इमेज, यहाँ से हमने ये इमेज ले लिया। इसको हमने किया राइट क्लिक सेकंड फिंगर, माउस पे आपके पास 2 क्लिक्स होते हैं, एक राइट क्लिक होता है और एक लेफ्ट क्लिक होता है। तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, वी गो टू सिक्योरिटी। तो आपको यहाँ पे पूरा लोकेशन या फिर हम बोल सकते हैं पूरा पाथ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद हम इसको करेंगे कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी टू कॉपी। हम वापस आ गए नोटपैड फाइल पे, ठीक है, जहाँ पे हमने डबल कोट्स ओपन किया था, सॉरी, जहाँ पे हमने डबल कोट्स ओपन किया था वहाँ पे हम कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर देंगे और फिर वी क्लोज द डबल कोट्स, ओके। अब इसने यहाँ पे ये भी बोला कि यू हैव टू आल्सो यूज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने स्पेस देके किया ALT, ओके। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट डाल दिया ALT के बाद हम यहाँ पे जो भी हमें टेक्स्ट देना है ऑल्टरनेट टेक्स्ट के तौर पे वो यहाँ पे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। ये देखिए हमने इसको खत्म कर दिया। अब इमेज टैग इज अ नॉन कंटेनर टैग या फिर हम बोल सकते हैं इट इज एन एम्प्टी टैग, तो इसको कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना है। सो फॉर दैट रीजन विल बी यूजिंग ए टैग। ए टैग का मतलब होता है एंकर टैग, एंकर टैग मतलब कोई भी पेज को किसी पेज से लिंक करना, ठीक है। ए टैग के साथ विल यूज द एट्रीब्यूट कॉल्ड एज href। href का मतलब हो गया हाइपर रेफरेंस, मतलब हम कौन से फाइल को रेफरेंस देना चाहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया href विल गिवन इक्वल्स टू साइन या डबल कोट्स ओपन किया हमने यहाँ पे एंड वी विल गिव द फाइल नेम यहाँ पे, क्योंकि हम जब भी दो फाइल क्रिएट करते हैं विल मेक श्योर कि वो दोनों ही फाइल एक ही फोल्डर के अंदर सेव हो,
ठीक है, सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स ओपन किया, विल गिव द फाइल नेम एज पेज टू डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एंड देन वी क्लोज द डबल कोट्स। अब यहाँ पे क्या लिखने पे वो जाएगा वो पेज पे, तो भी यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे और फिर हमने यहाँ पे ए टैग को क्लोज कर दिया। नाउ ऑल द थिंग्स आर डन, मेरे सारे क्राइटेरिया ऑफ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फिल हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विल क्लोज अवर बॉडी टैग एंड देन विल क्लोज अवर एचटीएमएल टैग। ठीक है, ये क्लोज होने के बाद हम फाइल को सेव करेंगे, तो वी गो टू फाइल, वी गो टू सेव कमांड, और यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड एज, और यहाँ पे हमने फाइल को नाम दे दिया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसको हमने कर दिया सेव, एंड यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट फाइल हो गया है क्रिएट। ठीक है, इन केस अगर आपको ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको क्या क्या डाउट्स आए हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली आई विल कम अप टू यू एंड आई विल सॉल्व द डाउट्स। ओके, so with this we are done with the first page of your HTML SOP number one. Now we are going to create the second page of the SOP HTML, that is advanced web designing. Okay, the first page is saved as index.html and the second page will be saved as your page2.html. Okay. So second page information is, the second page must contain the feedback or enrollment form related with the theme chosen with features of HTML5. The form must contain text element and email address of the company of the person or the person. That means we must have at least two elements of text, that is email address and name of the name or the address of the email address of the company or person. Okay, as well as it should also have a submit button. तो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें ऐड करनी है जो आपको ध्यान में रखनी है, whether you are creating an enrollment form, whether you are creating a enrollment form, whether you are creating a any other form, any kind of different forms. Okay, feedback form. Okay, so we'll start with this by going to notepad file. Yes. Okay, we go to file, we go to new tab and we'll create a new file. तो again same चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे doctype html, starting our program with html tag, then we go to head tag, we go to title tag where I'm going to give a title of closing our title tag, एंड अगेन जैसे इसके पहले भी इन्होंने बोला था कि एवरी पेज मस्ट कंटेन अ प्रॉपर मेटा इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम देखें मेटा इन्फॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू बी मेटा नेम, मेटा इज योर टैग एंड नेम इज योर एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट विल गेट अ वैल्यू दैट इज, हमने यहाँ लास्ट टाइम किया था कीवर्ड्स, यहाँ पे हम डालेंगे ऑथर्स। ठीक है, और यहाँ पे उसका कंटेंट होगा फॉर्म। ओके, वंस इट इज डन, हमने अगर स्टाइल अप्लाई करना है यहाँ पे कहीं पे भी फॉर एनीथिंग फॉर एनी रीजन, तो वी कैन डू दैट अगर हमको करना हो तो, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टाइल अप्लाई कर देते हैं हम, दैट इज H1, दैट इज योर बिगेस्ट हेडिंग टैग, सॉरी, H1 कैन बी योर स्टाइल। सो यहाँ पे हमने स्टाइल टैग को ओपन किया, विल गिव H1 एज योर सिलेक्टर, कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हमने दिया बॉर्डर स्टाइल, हमने दे दिया डैश्ड। ओके, वी गिव अ सेमीकोलन क्योंकि हमें एक और प्रॉपर्टी देनी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज दे दी स्टाइल को। अब यहाँ पे इसके अलावा मुझे और कोई प्रॉपर्टी देनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, स्टाइल टैग को क्लोज किया हमने, और फिर लास्ट में हेड टैग को क्लोज किया हमने। नाउ वी कम टू द बॉडी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो यहाँ पे हमने बॉडी टैग को ओपन किया, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, H1 टैग, क्योंकि H1 इज योर बिगेस्ट हेडिंग टैग, और यहाँ पे हमने H1 टैग के अंदर लिखा
क्लोजिंग अवर H1 टैग। ठीक है, अब इससे इससे क्या होगा ना कि हमने जो भी प्रॉपर्टीज इनटू दिस सिलेक्टर दी हुई है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी इनटू H1 टैग। ठीक है, इसका एक एडवांटेज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्म। तो ऑब्वियसली आपको फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे हमने फॉर्म टैग को ओपन किया। ठीक है, जैसे मैंने बोला था आपको, आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, इट इज़ अ नॉन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है जो भी एनरोलमेंट होगा उसका नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया पहले तो, ठीक है। अब बिकॉज इट इज़ एन इनपुट टाइप, मतलब कि हम यहाँ पे कुछ इनपुट लेने वाले हैं यूज़र के पास से, तो हमने यहाँ पे टैग दिया इनपुट। ये इनपुट टैग विल वर्क ओनली अंडर फॉर्म टैग, विदाउट फॉर्म टैग इनपुट टैग आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इनपुट टैग का टाइप है, टाइप विल बिकम योर एट्रीब्यूट, मतलब कि प्रॉपर्टी देंगे हम उसको। वो कौन से टाइप की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ये है टेक्स्ट टाइप की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने दिया टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे उसका नाम वगैरह कुछ देना है, कुछ एट्रीब्यूट देना है नाम वगैरह अगर आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नाम का एट्रीब्यूट दे सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल्स टू, हमने दे दिया डबल कोट्स के अंदर T1। देना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको देना हो फॉर द रेफरेंसिंग पर आप दे सकते हो। अब इसके अंदर हमने एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया, दैट इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, ये फील्ड आपको मैंडेटरी भरनी होगी, इसके अलावा फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट टैग दे दिया फर्स्ट चीज़ के लिए। अब बिकॉज इनपुट टैग इज ऑल्सो अ एम्प्टी टैग, तो यहाँ पे भी क्लोजिंग टैग नहीं आएगा। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पे लिखा, जैसे हमने फर्स्ट नेम लिखा वैसे से हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम। एंटर योर फर्स्ट नेम के बदले हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर लास्ट नेम। इनपुट टाइप टेक्स्ट आएगा सेम, नाम हम खाली चेंज करेंगे, T1 से हमने कर दिया T2, एंड फील्ड विल बी मैंडेटरी दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेना है इनपुट टाइप ईमेल आईडी, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे हमने दे दिया इनपुट टैग वापस से, इनपुट हमने टाइप दे दिया डबल कोट्स के अंदर ईमेल। ईमेल क्यों दिया, ताकि हम जो भी इनपुट टाइप देंगे वो यहाँ पे ईमेल टाइप का होगा इसके लिए। ठीक है, नाम हमने दे दिया ईमेल। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो नाम दिया आपको आप भी वही नाम दो। और ये फील्ड को भी हमने दे दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब कि ये फील्ड आपको मैंडेटरी भरनी होगी। ठीक है, आफ्टर दिस इज डन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होगा कि यहाँ पे अगर हमें न्यू लाइन पे चीज़ें चाहिए ना, तो विल यूज़ टैग कॉल्ड एज BR, और लास्ट में होगा, लास्ट में आएगा आपका सबमिट बटन। तो यहाँ पे हमने दे दिया डायरेक्टली इनपुट टाइप सबमिट, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ सबमिट बटन फॉर यू। अब हम वैल्यू पे क्या लिखना चाहते हैं, तो वैल्यू पे हमने लिखा यहाँ पे एनरोल फॉर्म, तो हमको वहाँ पे आउटपुट पे क्या दिखेगा, एनरोल फॉर्म वहाँ पे लिख के आएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी है, दैट इज हमें ये वाले पेज को हमारे फर्स्ट पेज से लिंक करना है। तो अगेन लिंक करने के लिए मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, वी आर गोइंग टू यूज योर ए टैग। तो ए टैग कैन बी यूज फॉर लिंकिंग थिंग्स। ए टैग का फुल फॉर्म होता है एंकर टैग। ओके, जस्ट इन केस अगर आपको वाइवा में कभी पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सको, इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। ए टैग स्टैंड्स फॉर एंकर, एच रेफ स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, इक्वल्स टू व्हाट, तो डबल कोट्स ओपन किया हमने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसको लिंक करना चाहते हो, तो इंडेक्स वाले पेज को लिंक करना चाहते हो, हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज किया हमने, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एंड देन वी क्लोज अवर ए टैग। इसके बाद हमें कुछ लिखना नहीं है। अच्छा ओके, वन सेकेंड वेट, अब यहाँ पे हम क्या देंगे, BR टैग एक बार दे देंगे,
और यहाँ पे हम फॉर्म टैग को क्लोज भी करेंगे, क्योंकि फॉर्म टैग जब ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी करना ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे ए टैग को क्लोज किया, अभी यहाँ पे हमें और कुछ ऐड नहीं करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज किया और फिर लास्ट में HTML टैग को क्लोज किया। ओके, एंड नाउ वी गो टू फाइल अगेन, विल सेव दिस फाइल अंडर द सेम फोल्डर, दैट इज डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे SYGCIT SOP के अंदर सेव किया है फाइल को। तो यहाँ पे हम बैकस्पेस करेंगे, इसको हमने नाम दे दिया है पेज 2.html। HTML will stand as an extension for your file। अगर आप इसको .html करके सेव नहीं करते हो तो ये ब्राउज़र पे ओपन नहीं होगा। अगर आपको ये फाइल ब्राउज़र पे ओपन करवानी है तो आपको .html करके इसको सेव करना होगा। ठीक है, इसको हमने किया सेव, एंड देन नाउ विल गो एंड लुक आफ्टर द आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे है हमारा फोल्डर SYGCIT SOP, इसको हमने किया डबल टिक। ये आपका फर्स्ट पेज है index.html, डबल टिक किया इसको हमने, यू कैन सी द फाइल हियर। ओके, अगर आपका इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा आता है ना तो उसको आप सेट कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने ना थोड़ा इमेज को सेट कर देते हैं। इसको हमने किया राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड। ओके, तो आपका यहाँ पे ये सब चीज़ आ गया। अच्छा, आपको यहाँ पे एक और चीज़ करनी है कि आपको इमेज को सेंटर में अलाइन करना है, तो वी कैन डू वन मोर थिंग, दैट इज पी अलाइन सेंटर, वी पुट इन डबल कोट्स, और लास्ट में यहाँ पे वी क्लोज अवर पी टैग, वी रिफ्रेश द फाइल, आपका इमेज यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पेज जो हमने यहाँ पे किया है सेव। ओके, जहाँ पे हमने बॉर्डर दिया था H1 टैग इनटू बोल्ड, तो यहाँ पे हमको वो चीज़ आ गई। ठीक है, हमने पैराग्राफ टैग लिया था जहाँ पे हमने 2-3 लाइन्स लिखी थी, तो यहाँ पे हमें 2-3 लाइन्स मिल गई। देन वी हैव टेकन योर B टैग दैट इज बोल्ड, U टैग दैट इज अंडरलाइन, जो हमारे फिजिकल स्टाइल टैग्स हो गए आपके। ओके, एंड देन वी हैव टेकन एन इमेज। ओके, यहाँ पे हमने इमेज भी ले लिया जो हमारा सेंटर में अलाइन हो गया है। आपको चाहिए आप उसको सेंटर में अलाइन नहीं करके लेफ्ट हैंड साइड भी अलाइन कर सकते हो, दैट इज अप टू योर विश। ठीक है, एंड देन हमें फर्स्ट पेज को सेकंड पेज से लिंक करना है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज को सेकंड पेज से लिंक किया, जहाँ पे हमने दिया एनरोलमेंट फॉर्म ऑन टू सेंटर, फर्स्ट नेम दिया हमने, सेकंड नेम दिया, और फिर ईमेल आईडी दिया। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे एनरोल फॉर्म, जो मैंने आपको बोला था, जो आप वैल्यू पे डालते हो वही चीज़ आपको प्रिंट होके आती है। ठीक है, अगेन इफ यू क्लिक ऑन दिस पार्ट तो आपको वापस से वो लिंक हो जाएगा फर्स्ट पार्ट पे। ओके, सो इस तरीके से हमने आपका ये SOP नंबर 1 क्लियर किया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है। जब भी आप प्रैक्टिकल करने जाओ, इनटू योर बोर्ड प्रैक्टिकल्स, मेक श्योर करना कि आप पहले आपका पूरा कोड लिख दो, आप उसको परफॉर्म कर लो, फिर आप उसको अपने सप्लीमेंट्री पे लिखना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि आपने अगर पहले कोड सप्लीमेंट्री पे लिख दिया, बट अगर इन केस बाय चांस आपका कोई कोड रन नहीं कर रहा, तो आप वहाँ पे फंबल हो सकते हो और आपका कैंसिलेशन ज़्यादा हो सकता है इनटू द सप्लीमेंट्री। तो आपके सप्लीमेंट्री पे ज़्यादा कैंसिलेशन ना हो, आपका सप्लीमेंट्री क्लीन दिखे, उसके वजह से आप पहले उसको परफॉर्म करना, फिर ही ये कोड कोड को उधर आपके आंसर शीट पे लिखना। ठीक है, सो आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई होप आप अच्छे से आप अपने एग्जाम्स दोगे, आप ये वीडियो एंड तक देखोगे, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करोगे और उसको सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू सो मच।